Hello dear parents. So today's concept decoding is very much based on the how to tackle the questions in the exam hall. Okay, so when I talk about especially this vector integration wala part, so when I talk about vector integration, it means I'm talking about the line integral, I'm talking about the surface integral, I'm talking about the volume integral. Okay, so what is the what is the purpose of this special lecture? The purpose is to make your life easier. Believe me, nothing beyond that. It is not something like you don't know how to calculate the surface integral or line integral or volume integral. No, not at all. It is all about what a person feels about this process. It is all about we have to solve, we have to learn some fixed categories of question here when you talk about line integral, surface integral, vector calculus, this volume integral. So today I'm gonna have those surfaces like you may, for example हम स्टोक्स के क्वेश्चन करने की कोशिश करें, फॉर एग्जाम्पल हम जीडीटी के थ्रू करने की कोशिश करें. सो आई विल बी ट्राइंग लाइक 1 or 2 questions from the Stokes, 1 or 2 questions from the GDT, so that we can decode almost 5 to 6 possible surfaces थ्रू लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल. क्योंकि स्टोक्स और जीडीटी दोनों लगाएंगे तो तीनों का बैंड बचेगा. राइट और नॉट? सो इफ यू फील कि आज के क्लास में कुछ थ्योरेटिकल कुछ बहुत बात होने वाली है, ऐसा नहीं है. आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आपकी चीज़ों को ईजी करने वाला है वो. ठीक है, वैसे तो मैं ये हर बार बोलता हूँ क्योंकि हर क्लास का मकसद ही वही है. फिर भी आज वाले जो क्वेश्चंस हैं इनमें ज़्यादा माथापच्ची रहती है, तो मुझे लगा कि मैं आपकी लाइफ को इजी कर देता हूँ यहाँ पर. So when you talk about the line integral, the surface integral and the volume integral, we will be taking questions from the Stokes and the Gauss divergence theorem, keeping in mind कि we have to have categories of questions for our CAC and forest services. Right? So as usual, we deviated from our track. We'll be trying all the things from basics to the upper level. चलो, so पहले तो छोटी छोटी बातों से ही स्टार्ट किया जाए, है ना, ताकि आपका थोड़ा सा सिस्टम को पहले ओपन किया जाए, है ना. Can anyone reply over this question? Within the seconds, the value of I'm sorry, the value of the line integral where C is a closed curve, r vector dot dr vector, where C is a closed curve which is behaving like a boundary of surface S. This is the target for us. What is the answer? Anyone? Can you reply it please? What is the value of this line integral? चलिए, तो क्वेश्चन जस्ट सेकेंड्स का आंसर है, लेकिन हम उसको डिकोड करेंगे प्रॉपरली. ठीक है, चलिए, बी ऑन द बोर्ड प्लीज. सो वी मे फॉलो वन पाथ, दैट इज वे वन. हम क्या करेंगे, देखना ध्यान से, हमारे दिमाग में क्या क्लिक करेगा. अच्छा चलो यार, आर वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. ठीक बात है. डी आर वैक्टर जो होता है वो डी एक्स आई कैप होता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप.
आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर जो बनेगा वो बन जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। अब चाहिए लाइन इंटीग्रल सी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। ठीक है, अब C और S तो पर्टिकुलर दिया नहीं है कि C है क्या, सर्किल है, पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन है, क्या है, प्लेन है, क्या है। C तो गिवन है नहीं। इफ C इज नॉट गिवन देन हाउ वी कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर। सो वे 1 ने जाके हमें मंजिल तक नहीं पहुंचाया, अधूरी मंजिल पर छोड़ दिया है, राइट और नॉट। चलिए दूसरा रास्ता तलाशेंगे, हमें क्या है, हम तो जिज्ञासु लोग हैं, राइट। वे 2 पर आते हैं, आराम से देखिए यहां पर। अगर आप देखें, सिंस C is a closed curve bounding the surface S, so you can imagine like you have something like this where this is C and this is the surface S, right or not? So Stokes theorem is applicable, right or not? So Stokes theorem is applicable. If you have any single doubt कि सर आपने ये क्यों लिखा, what is the relevance of this here, then I would like to suggest you don't miss the concept talk of game of Stokes. Don't miss that. Beautifully I have decoded all the things there. ठीक है, चलिए Stokes applicable है, so line integral r vector dr vector, it must be surface integral curl of r vector dot n cap ds होना चाहिए या नहीं। अब जब मैं सेकंड्स की बात कर रहा था तो इट वाज नॉट लाइक अ ब्लाइंड गैस, इट वाज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अगर आपको आदत नहीं है तो फिर आप कर्ल ऑफ आर वेक्टर निकाल लीजिए, लेकिन आगे से आपको ये चमकने लगेगा कि ये क्यों जीरो होता है। डेवर ओवर डेवर बाई जेड, डेवर ओवर डेवर जेड, डेवर ओवर डेवर, दिस विल बी 0 i cap plus 0 j cap plus 0 k cap. So here eventually you will have surface integral that is 0 vector, not the scalar value, right? So 0 dot, ultimately it turns out to be 0 scalar. तो लिखने में भी आपकी लर्निंग अप्रोच झलकती है कि आप चीज़ों को रट रहे हैं या वाकई में उनको समझ के आपने प्रेजेंट कर रहे हैं। यू गॉट माई पॉइंट डियर फेलोज। सो थिंग इज हियर इट इज नॉट अबाउट आंसरिंग द क्वेश्चन कि दिस आंसर इज, इसका 0 आ रहा है, बट इट वॉज ऑल अबाउट हाउ टू थिंक, व्हाट द साइकोलॉजी वी कुड हैव हियर। ठीक है, मजा आया नहीं आया? चलो फिर एक चीज और लीजिए, evaluate what I can ask you. चलिए, the line integral phi del phi, ठीक है, phi del phi dr vector where C is the closed curve which is boundary of सरफेस S। चलिए इसके बारे में बताइए, अगेन जस्ट अ 1 सेकेंड आंसर सभी लोग। अरे रिप्लाई करो भाई, इधर क्या देख रहे हो, हट हाँ रिप्लाई।
What is gonna be? Anyone? चलिए, let me try it. So again, approach क्या हो सकती है? वेव वन पे जाएंगे, जैसा कि हमने पीछे बताया था. वेव वन प्रोसीड करेंगे, अधूरी मंजिल से पहले अटक जाएंगे जाके, राइट? कि सी और एस है क्या, तो डायरेक्टली इवेल्युएशन की बात तो खत्म. वे टू पर जाएंगे, C is a closed curve, so obviously you have the surface like this. This is the surface S. So Stokes applicable. So Stokes is applicable. That means the line integral क्या है? Phi del phi dr vector. It can be written as surface integral curl of phi del phi, right? Curl of phi del phi dot n cap ds, right? अब यहां मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा और बहुत ही क्रूशल मैसेज देना. देखो प्यारे बच्चों, when I did this concept talk for vector differentiation, there I took concept talk over vector identities. Identities means the theorems kind of, the expressions kind of, which usually sometimes directly may be asked in your exam, sometimes indirectly those may be used. Those are not tough to solve, those are easy to handle. But what happens if, ध्यान से सुनिए बात को, if you are not gone through those things, then you struggle. फिर आपको महसूस नहीं होगा कि ये चीज ऐसे क्यों हो रहा है करके. So I'll change the color here to make you aware कि यार इस पे कुछ काम करना है. Curl of phi del phi. So whenever you have del cross some scalar function of some vector, so this is what, this is an eye opener for you here. It is not like a point of interest कि मैं आपको स्टोक्स के क्वेश्चंस करा रहा हूं, मैं आपको लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना बता रहा हूं. नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं. आई एम टेलिंग यू कि आप कहां फंसेंगे जाकर. ओके, सो मेरे लिए तो बहुत आसान है ये सरफेस. तो डेल फाई क्रॉस डेल फाई प्लस ये वाला डेल फाई इधर में क्रॉस डेल फाई. सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या होगा? जीरो वेक्टर. तो अल्टीमेटली दिस टर्न्स आउट टू बी surface integral 0 vector plus 0 vector dot n cap ds, and ultimately it turns out to be 0 dot some vector is comes out to be 0 scalar. Dot product is a scalar value. मेरे वर्ड्स पर भी फोकस करते रहिए, कुछ भी हवा में नहीं बोलता हूँ मैं, हर वर्ड का मीनिंग होता है. आप में से कितने सारे लोग यहाँ वेक्टर मिस करेंगे, केवल 0 लिखकर निकल जाएंगे. तो यहाँ जब मैं डिकोड कर रहा हूँ प्रॉब्लम्स वाले सेशन में भी, so it is not something like ordinary going. It is very much researched. I am trying to focus, pinpoint on the points where you people struggle, where you have the possibility to go for the wrong interpretations. Fair? So these are some like two problems which can be an eye opener for you. Things can be pretty easier, but those can be so difficult if you don't have the exact idea before the exam itself. So this concept talk is making you help in that, right? चलो, let's have some more problem now, है ना? थोड़ा सा बैंड बजाते हैं. So the question is again very much favorite question, multi-time asked by UPSC, repeatedly asking the question. So let's write. Verify Stokes theorem. Verify Stokes theorem
और f vector equals yi cap plus zj cap plus xk cap, where s is the upper half surface of the sphere. कुछ लोगों को चल रहा होगा मास्टर पीपीटी क्यों नहीं लाता है, टाइम वेस्ट करता है, क्योंकि हमको मोदी जी के साथ मीटिंग लगी हुई है ना दोस्त. घूमते रहना. मैथ्स इज नॉट अबाउट रीडिंग एंड सर्कलिंग द पॉइंट्स ऑन द पीपीटी. ओके, इट्स ऑल अबाउट डूइंग. और जब हम लिख रहे होते हैं हमारा दिमाग बहुत तेजी से चल रहा होता है. आधे क्वेश्चन की ज्योग्राफिकल मैपिंग दिमाग में हो चुकी होती है. तो दोस्त, आप पर निर्भर करता है कि आप मैथ्स कर रहे हैं या मैथ्स को ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट समझ के कर रहे हैं. डिसीजन इज योर्स. एनीवेज, आई कांट चेंज माय वे. आई एम सॉरी डियर्स, लव यू ऑल, है ना. Again, if I would be in the exam hall, this question could take 4 to 5 minutes. As a student, I am saying, not as a teacher. Here, 4 to 5 minutes I would have invested over that. Not an issue in that. But here we are trying to decode the things. Not for those persons who have already reached to that interview. इंटरव्यू के बाहर भी लोग आते हैं. वो दर्द क्या होता है, वो उस टाइम तो दर्द था, लेकिन उसके बाद जीवन में जब आप आगे बढ़ते चले जाते हैं तो फिर भूल जाते हैं. यार, 1 आध महीने लगा, उसके बाद बस लगा कि टीचिंग ही करनी है तो करते रह गए. ठीक है, पॉलिसी मेकिंग करनी है तो कर रहे हैं, अपने मजे ले रहे हैं. तो एनीवेज, कहने का मतलब ये है कि जब मैं डिकोड करने की बात कर रहा हूं, सो इट इज नॉट लाइक रैंडम. ठीक, बार बार ये चीजें इसलिए बोलनी पड़ती हैं क्योंकि आप चीजों से घिरे हुए हैं और मुझे आपको उनसे बाहर निकालने की कोशिश करते रहना पड़ेगा. ये मेरे इष्ट का इशारा है. ठीक है, चलिए आते हैं. देखिए, यहां पर सबसे पहला काम, जब भी आपको कहा जाए कि वेरीफाई करना है, तो आप ये एग्जामिन अपनी हैबिट में डाल लीजिए कि मुझे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जरूर करना है. प्रॉब्लम कह क्या रहा है, राइट. सो पहला काम होगा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन. ठीक है. तो ज्योमेट्रिकली जब इंटरप्रेट करने जाएंगे आप, तो क्या बोल रहे हैं, अपर हाफ सरफेस ऑफ द स्फीयर. सो सपोज दैट आई टेक द स्फीयर जिसका अपर हाफ सरफेस ये है. ध्यान से देखना बच्चों, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक प्रॉब्लम नहीं बना रहे हैं, आप कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं. तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि एक प्रॉब्लम में इतना टाइम लगा. केवल अपर हाफ लिया है, so that means we have this hemispherical surface. This is S, और S क्या है, x square plus y square plus z square equals to a square, right? So we can take this frame of reference for us. Let's say this is x axis, this is y axis, this is z axis. Fair? कोई दिक्कत यहां तक? Upper half of the surface. Please notice the word. क्लियर है अभी? अब when I told you, ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं कि यहाँ वेरीफाई करने बोला है तो अपने को स्टॉक्स देखना ही नहीं है एप्लीकेबल है या नहीं. अपनी आदत में तो लाइए कम से कम. कभी इवेल्युएट करने को बोला होता तब तो लिखना पड़ता ना, कि देखना पड़ता ना, आपको लिखना पड़ेगा कि वेदर स्टॉक्स इज एप्लीकेबल और नॉट. तो अपनी स्किल, अपने अंदर वो स्किल डेवलप कीजिए. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. बी ऑन द बोर्ड प्लीज. सो सिंस
यूर सी मिल गया, बाउंड्री है, एस मिल गई सरफेस, सो स्टोक्स इज एप्लीकेबल। चलो प्यारे बच्चों, अब हम जाते हैं, स्टेटमेंट हमें जरूर लिखना चाहिए व्हेनेवर वी हैव द क्वेश्चन ऑफ वेरिफिकेशन। ये मैं तब तक आपको हर कॉन्सेप्ट टॉक में बोलूंगा जब तक आपकी आदत नहीं पड़ जाती। ठीक है, किसको करा रहे हैं वेरीफाई? स्टोक्स थ्योरम को। ठीक है, सो हियर वी हैव सरफेस, डिकोडेड फॉर्म में लिखिए, विथ बाउंड्री सी। ठीक है, सो स्टोक्स थ्योरम सेज कि लाइन इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर विल बी सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ एफ एंड डी एस। राइट और नॉट? लिखना मत भूलिए, लिखना मत भूलिए, क्योंकि लिख देंगे अगर तो पूरे प्रोसेस में आपसे गलती होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे कि एन कैप पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, क्या करना है। ठीक है, वेयर एन कैप इज द यूनिट, हर वर्ड का मतलब होता है, हर वर्ड का नॉर्मल एट सम पॉइंट ऑन एस। So let's say if you take this is the point P, here this is n cap. इतना अगर आपने लिख दिया तो विश्वास मानिए आपका जो सब कॉन्शियस माइंड होता है वो इस तरीके से चीज़ों को फिर फीड कर लेगा अपने दिमाग में कि अब गलती होने के चांसेस एकदम से मिनिमाइज हो जाएंगे। आई एम सेइंग बिल्कुल जीरो। ठीक है, अच्छा आउटवर्ड है तो ऊपर की ओर, अगर ये सरफेस उल्टा कर दिया जाए तो क्या होगा? यही एन कैप नीचे की ओर जाएगा तो नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट डियर फेलोज? सो जो मैं लिख रहा हूं, जो बोल रहा हूं, हर चीज का सेंस है। ठीक है, चलिए, और ये मैंने बोला कि उल्टा कर दिया जाए तो ऐसा नहीं कि मेरे उससे कुछ, भाई इतने सारे क्लासेस लेते, इतने सारे बच्चे, एक बच्ची ने हमसे पूछा था कि सर अगर ये सरफेस उल्टा कर दे तो एन कैप पे क्या फर्क पड़ेगा? डिड यू गेट माय पॉइंट? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग या नहीं? तो प्लस माइनस इंटीग्रेशन के पूरे रिजल्ट को डेविएट कर सकता है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रियल डिकोडिंग। ठीक है, और जो आप करते हैं वो मैं यहां कर नहीं सकता, मतलब कर सकता हूं लेकिन फिर कॉन्सेप्ट टॉक का मजा गड़बड़ हो जाएगा। तो अब हमें चाहिए, ध्यान से देखिए, अब आता है इंप्लीमेंटेशन। जब आप इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो आपको LHS दिख रही है, दैट इज लाइन इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, वेयर सी क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स बाई प्लेन में ये सर्किल है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एक्स बाई प्लेन में जेड इज 0, सो सी इज अ सर्किल। कटोरे की जो बाउंड्री है ऊपर की वो एक सर्किल ही तो होगा। Am I clear to all? किसी को कोई डाउट यहाँ पे? Anyone? I hope no. चलिए, अब हाउ टू इवेल्युएट द लाइन इंटीग्रल, ये अगर आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे हैं, क्या बोलूं अब, बिकॉज यू हैवंट अटेंडेड द कॉन्सेप्ट टॉक ऑफ लाइन इंटीग्रल, राइट? एनीवेज, तो दिस इज बाई डी एक्स, क्योंकि F1 वाला ये दे रखा है ना, बाई डी एक्स प्लस जेड डी वाई प्लस एक्स डी जेड, राइट? Since you are working over the xy plane, so z is 0, xy plane पर z is 0। अभी देखना ध्यान से, एक ही क्वेश्चन के अंदर इतने पॉइंट्स आपको बता दूंगा और दिमाग में छप जाएंगे, विश्वास मानिए। xy प्लेन पर z 0 है तो dz भी 0 है, सो दिस टर्न्स आउट टू बी बाई डी एक्स, जेड 0, यहाँ dz 0, c है क्या? सर्किल, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब
बाई डी एक्स, बाई विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और सर्किल के लिए कहां से जाएगा, एक्स विल बी रनिंग फ्रॉम माइनस ए टू ए डी एक्स, राइट। अब देखना ध्यान से, टीचर क्यों हर वक्त माइंडसेट मेकिंग की बात करता है, क्यों टीचर एक एक पॉइंट पे इतना जोर देता है। डियर फेलोज, आप में से कई सारे लोग, आई एम सेइंग मेनी ऑफ यू वुड बी इन दिस सिचुएशन कि ये इंटीग्रल फटाफट याद नहीं आएगा। क्या ये इंटीग्रल फटाफट याद नहीं आएगा? मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं। तो कुछ लोगों को जिनको फॉर्मूला याद है बहुत अच्छी तरीके से, फेयर एनफ, वो ओके हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहां इंटीग्रेशंस में फंस जाएंगे। तो जब मैंने कॉन्सेप्ट टॉक डिजाइन किया है या मैं अपने लेक्चर्स भी लेता हूं, तो इंटीग्रल कैलकुलस के फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में केवल इंटीग्रेशंस पर काम करवाता हूं। रीजन यू नो व्हाई? बिकॉज सबको इंटीग्रेशन आता है। आप ही की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे जैसे टीचर्स की भी बात कर रहा हूं। बोलेंगे इसके बाद तुम कर लेना, सिंपल इंटीग्रेशन ही तो है। अरे भाई, जब तुम्हें याद नहीं है तो उसे कहां से याद आएगा? या इनिशियली अगर मैं अपनी बात करूं तो 2015-16 तक ऐसा लगता था यार ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या है, नहीं। लेकिन फिर जब चीजों को समराइज, कैटेगराइज करके पढ़ने लगा ना, तब समझ में आया कि यार ये टाइप के इंटीग्रेशंस हैं जो बार बार पढ़ते हैं, और इनके फॉर्मूलाज में जहां डिस्टर्बेंस होता है वहीं प्लस माइनस में आंसर डिफर कर सकते हैं। ये मैं मेरी बात बता रहा हूं और किसी की नहीं। तो क्या करना चाहिए, इंटीग्रल कैलकुलस में जो कैटेगरीज ऑफ इंटीग्रेशंस हैं, अब यहां पर मैं आपको बोल भी दूं कि x इक्वल्स टू ए साइन थीटा लेके उधर 2 टाइम्स 0 से ए हो जाएगा, इवन फंक्शन है, यहां से कर दो, 0 से π/2 बना लो अगर मन करे। जैसे मैं आपको n नंबर ऑफ वेज यहां पर बोल सकता हूं, क्योंकि मैं एज ए टीचर काम कर चुका हूं उस पर, और एज ए स्टूडेंट ये गलतियां रेक्टिफाई की थी। अब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा होता तो 10 में ले जाते, अब बाहर x और लिखा होता तो आपका बैंड बजने लगता फिर कि आप क्या करें, ये वाला फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है मुझे। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट डिकोडिंग, जो कॉन्सेप्ट टॉक चल रहा है, ये आपके लिए आई ओपनर है। ना केवल यहां हम कॉन्सेप्ट्स को ओपन करते हैं, बल्कि वी लेट यू नो वेयर यू कैन स्ट्रगल माय डियर फेलोज। फेयर? तो रेड मार्क कर दें यहां पर, क्यूपेन सर क्या बोलकर गए थे। क्लियर है? तो लाइन इंटीग्रल तक तो, एलएचएस तक तो मुझे इतनी बात आपके साथ करनी थी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊंगा अब मैं। चलिए, अब अगर हम अपने आरएचएस पर जाएं, बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन। आरएचएस को अगर आप गौर करें, आरएचएस के इंप्लीमेंटेशन पर, तो सबसे पहले आपको एन कैप चाहिए। एन कैप द कॉन्सेप्ट टॉक में मैंने बताया था, स्टोक्स वाले में भी बताया था, वाई और ग्रेडियंट वाले में भी बताया था। तो अगर आपने रट लिया है, फेयर एनफ, फिर भी आई विल सजेस्ट यू डोंट मिस द कॉन्सेप्ट टॉक ऑफ दैट, व्हाट आई कैन से इज Stokes, game of Stokes. I have like very beautifully explained the things. S क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर आप मुझसे कहें ना, तो भाई मेरे को याद है एक्स अपॉन ए आई कैप प्लस वाई अपॉन ए जेड, जे कैप प्लस जेड अपॉन ए के कैप निकलेगा। लेकिन एग्जाम हॉल में आपको बैठना है, आपको चीजें करनी है, तो यहां से आपको ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट क्या? डेल ऑफ एस, डेवर ओवर डेवर एक्स ऑफ दैट एस आई कैप प्लस डेवर ओवर डेवर वाई ऑफ दैट एस जे कैप प्लस डेवर ओवर डेवर जेड ऑफ दैट एस ए कैप। एम आई क्लियर टिल हियर? एकदम विश्वास के साथ। जब आपको एफ वेक्टर डॉट एन कैप मिल गया, एन कैप मिल गया, तो एफ वेक्टर डॉट एन कैप आपने निकाल दिया।
सो पहला महत्वपूर्ण पहलू ये होता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना। अब आप एक्स वाई पर प्रोजेक्शन ले जाएंगे तो सरफेस इंटीग्रल एफ कर्ल ऑफ एफ एंड डी एस, राइट, कर्ल आपने निकाल ही लिया होगा, तो कर्ल एफ। अब इसका प्रोजेक्शन जब एक्स वाई प्लेन पर लेंगे, सो वट एवर द एक्सप्रेशन यू हैव हियर, दिस विल बी डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ के कैप डॉट एन कैप। अगेन वही रेड सिंबल के पास पहुंच गए हम लोग। अब ध्यान से सुनिए इस चीज को, ऐसा नहीं है कि ये कैलकुलेशन मैं आपको बता दूंगा तो ये लेक्चर बहुत ग्लोरीफाई कर देंगे आप, नॉट एट ऑल। What I say here, my dear fellows, if, ध्यान से सुनिएगा, if you are going through this process multiple times, if this much level of blocking is in your mind, कि कहाँ कहाँ पे मुझे ध्यान देना है, प्रोजेक्शन लिया, अब एक्स वाई की लिमिट्स पे आएंगे, फिर इंटीग्रेशंस पर पहुंचेंगे, फिर आपको इंटीग्रेशन पे सोचना पड़ेगा, और वो मैंने उसके लिए पहले ही आपको अपने उपदेश दे दिए हैं, राइट और नॉट। तो हेमीस्फीयर का सरफेस या अपर हाफ सरफेस ऑफ दिस स्फीयर, इज दैट क्लियर टू ऑल? कहाँ कहाँ फंसेंगे जाके ये क्लियर है सबको? सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट टॉक। अब आपको चाहिए कि सर मुझे इसका आंसर चाहिए, तो भाई तुम किसी भी बुक को, किसी भी नोट्स को उठा लो, ये क्वेश्चन मिल जाएगा, विद सेम डेटा मिल जाएगा। तो मैं कोई हीरो नहीं हूं, मेरे को सपना नहीं हो रहा है कि मेरे नोट्स से यूपीएससी ने पूछा करके, नॉट लाइक दैट। क्लियर है अभी? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? शैल आई प्रोसीड नाउ? चलिए। सो एज आई वॉज इंटेंडेड टू कि आपको प्रॉब्लम्स के डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम्स पर ले जाना है आज मुझे, तो मैं अभी भी उसी पर अडिग हूं। एक और क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा सा। एंड दैट यूपीएससी आस्क्स, ओके, just give me few minutes only. Okay, where it is, yaar? Just 1 minute, है? I'm sorry, dears. Yeah, yaar. Oh, I guess I have moved to that. चलो वो नहीं तो उससे बढ़िया क्वेश्चन उठाएंगे। I'm sorry. I'm sorry. Please hold on. चलिए, very beautiful question I am picking for you guys. लिखेगा, evaluate the line integral x by dx plus x by square dy। एक ऐसा पहलू कॉन्सेप्चुअली अगर उसको टच करने की कोशिश की जाए, यू विल स्टार्ट फीलिंग द जॉय एक्चुअली, you will start connecting different dots actually. So that is the plan I have in my mind now for this. Okay, चलिए, by स्टोक्स थ्योरम सीधा आपसे बोलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको चॉइस देगा। इवेल्युएट दिस लाइन इंटीग्रल by स्टोक्स थ्योरम where C is the square, where
C क्या है प्यारे बच्चों? Where C is the square in xy plane with vertices a comma 0 minus a comma 0 0 comma a 0 comma minus a। ठीक है, सॉरी। अब आप देखिए क्या ब्यूटी होती है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की। आपने स्टोक्स थ्योरम का फॉर्मूला भरपूर रटा हुआ है, और इस टाइप के क्वेश्चन एक आध नहीं है, कई सारे आपको यूपीएससी के बीट सीएससी बीट फॉरेस्ट सर्विसेज में मिल जाएंगे। यू कैन क्रॉस वेरीफाई इट बाय योरसेल्फ, आई कैन बैट ऑन दिस। ठीक है, अब देखिए, अरे यार आपने कहा यार इंटीग्रेशन सी एफ डी आर इक्वल सरफेस इंटीग्रल कर्ल एफ एन डी एस तो खूब दिया होता था, ये क्या बवाल दे दिया, इस पे कहाँ से स्टोक्स लगेगा? You may think like that. Say yes or no. So again I will say this answer is just of 1 minute for me, not more than that, only for 1 minute. Still I will try to touch every nerve of this question so that आपको ये समझ आए कि टीचर कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन पे इतना फोकस क्यों करता है और कितना इसके पीछे एफर्ट्स डाले गए होंगे, तब इस टाइप की जाके अंडरस्टैंडिंग बनती है कि कहाँ किस पॉइंट पे पिन पॉइंट करना है आपको। मेरी बात समझ रहे हैं? सो सॉरी, नेवर बी इन हरी व्हाइल लर्निंग, ऑलवेज बी इन हरी व्हाइल जब यू हैव डन सफिशिएंटली देन रिवाइजिंग, क्विक रिविजन्स, दैट इज द लास्ट टाइम। At this particular point of time we are developing concepts, okay? चलो देखेंगे प्यारे बच्चों। So let's decode first। देखिए ध्यान से, अगर हम इसको डिकोड करने जाएं आज तो हम पाएंगे, बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन। मुझे पूरा मजा आ रहा है अभी। लेट्स से मैं आपसे कहूं मेरे पास है इंटीग्रेशन सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इफ आई से एफ वेक्टर इज सम फंक्शन ऑफ एक्स बाई आई कैप प्लस सम फंक्शन ऑफ, अगेन आई एम सेइंग कि मैं आपको इस क्वेश्चन का कैटेगरी बना के मैं ये चीजें बता रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन कितने भी आप डील कर सकते हैं, ना कि उस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। आंसर तो 1 सेकंड में दे दूंगा बाद में, ठीक है? सो जस्ट हैव पेशेंस ओवर द थिंग्स प्लीज, है ना? अब देखो, लेट इफ एफ वेक्टर इज दिस, सो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब चूंकि आर वेक्टर क्या होता है, that is xi cap plus yj cap plus zk cap. So dr vector can be written as dxi cap plus dyj cap plus dzk cap. So this, अब मैं p of x y जगह in short p लिख रहा हूँ, ठीक है? So p dx plus q dy. That means, I'm sorry, for line integral this symbol is just for closed, okay? C is closed. I'm sorry. This can be written as p dx plus q dy. देखिए एकदम बहुत आराम से, बिना कोई तनाव लिए, बिना कोई जल्दबाजी में, ठीक है? तो इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई को इंटीग्रेशन सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर लिखा जा सकता है, जहां मेरा एफ वेक्टर जो है वो होना चाहिए पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप। ठीक बात है, देखना ध्यान से। नाउ अगर मेरा, ध्यान से सुनना अभी, if I talk about this problem, this is in 2D
सो इन 2 डायमेंशनल स्पेस, तो वो जो सरफेस आपने जो रीजन लिया है दैट कैन बी रिड्यूस्ड इन द फॉर्म, लेट्स से दिस इज द रीजन वेयर, let's say this is C1, C2, C3, C4 and C is C1 plus C2 plus C3 plus C4. So what you can say here, देखिए ध्यान से, since R is a region enclosed by closed curve C, where C क्या है, C comprises of 4 parts, that is C1 plus C2 plus C3 plus C4. Right or not? बहुत बढ़िया। अब देखना प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं यहां पर कर्ल ऑफ एफ वेक्टर निकाल के जरा बता दो मुझे, तो थोड़ा सा तसल्ली मिल जाएगी। क्या पूछ रहा हूं? कर्ल ऑफ एफ वेक्टर वेयर एफ इज दिस, so that will be del cross f vector and that is gonna be I j k dever over dever x dever over dever y dever over dever z p q 0। कोई दिक्कत? तो if you compute dever over dever by dever over dever z, q is the function of x and y, so dever over dever z of q will be obviously 0. So this you will be getting similarly for j cap. The other part you will be getting dever q over dever x minus का dever p over dever y k cap. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? Anyone? चलिए बहुत बढ़िया। Since we are in xy plane, right, so z axis is normal, right, so n cap को क्या ले सकते हैं? k cap। xy प्लेन पर ही तो बात कर रहे हैं आप, आपका गिवन प्रॉब्लम किसके ऊपर है? सॉरी, xy प्लेन के ऊपर। Say yes or no? I'm literally sorry, है ना? मतलब fever, cold, everything, right? Anyways, dear fellows, I'm trying my best कि कोई भी गैप ना आए लेक्चर्स में, और थोड़ा सा भी अगर एनर्जी लेवल में वॉइस में अगर थोड़ा सा रहता है, so I hope you people will cooperate, and because it will be compensated by the conceptual learning what I am trying to give you. So xy plane के लिए n cap will be k cap. So कर्ल ऑफ f वेक्टर डॉट n cap क्या मिल जाएगा? 0 का ही कैप, 0 j cap, डेवर q ओवर डेवर x माइनस डेवर p ओवर, सॉरी, चेक इट आउट। होगा या नहीं? कोई दिक्कत किसी को भी? एनीवन? अब देखिए स्टोक्स क्या कहता है, देखिए ध्यान से। स्टोक्स क्या कहता है हमसे कि भाई जो तुम्हारा लाइन इंटीग्रल है एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, दैट यू कैन टेक इट एज कर्ल ऑफ एफ एंड डी एस। बोलो हाँ या ना? यही तो कहता है। Stokes is not restricted only for 3D spaces, it came here 2D में as well. Say yes or no? Everyone, please try to correlate the things, otherwise na lecture will be just like boring for you. अब जिस चीज के लिए आपने ये लेक्चर ओपन किया था, पहले 2 में तो बहुत मजा आया आपको, तीसरे में भी मजा आया, चौथे क्वेश्चन में भी आपको उतने ही उसी लेवल पर ले जाऊंगा। यहां मैंने जो कोशिश की है आपके सामने कि जब भी आपको इस टाइप की प्रॉब्लम दिखे, हाउ यू इमेजिन द स्टोक्स थ्योरम हियर, सो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, जरा कोई मुझे बता देगा? थोड़ी मेरी मदद कर दो यार।
एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, सरफेस 2D में क्या है वो रीजन, राइट। 2D के ऊपर में कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप, डेवर Q ओवर डेवर X माइनस डेवर P ओवर, अब सरफेस है 2D में है, सो दिस विल बी कन्वर्टेड टू डबल इंटीग्रल एंड हियर ds का प्रोजेक्शन ऑन द xy प्लेन। अगेन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, सो डोंट फॉरगेट टू अटेंड द कॉन्सेप्ट टॉक ऑफ सरफेस इंटीग्रल्स वाला, लाइक एक्चुअली दैट हेडेड एज आई गेस स्टोक्स थ्योरम के एग्जांपल्स करके, बट सरफेस इंटीग्रल में हाउ टू डील द प्रोजेक्शन एंड ऑल दैट यू कैन have the beautiful explanations from there itself. I hope you will definitely enjoy that. Any problem till here? Please say yes or no. Everyone. तो मैंने यहाँ एक प्रॉब्लम उठाई, उसको पूरा डिकोड किया, आपके नज़रों के सामने पूरा दिख रहा है कि जब भी मुझे इस टाइप की प्रॉब्लम दिखेगी, how we can imagine and how beautifully I can handle that, right or not? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके, जिसके लिए आप चाहते हैं कि मेरे को आंसर दे दो बस, राइट? यू जस्ट विश टू हैव इंटीग्रेशन सी एक्स बाई डी एक्स। सो जब आपको आंसर करना हो, बी ऑन द बोर्ड प्लीज। अब हम कर देते हैं इसका आंसर, ठीक है? So if you talk about what are the vertices, minus a0 I'm sorry, a0 0a 0 sorry 0 minus a। So what is the reason my dear fellows? ये r हो गया, let's say this is C1, let's say this is C2, let's say this is C3, let's say this is C4। अगेन वो स्टोक्स ना भी कहता आपसे, बिल्कुल भी ना कहता, तब भी आप इस प्रॉब्लम को कैसे डील करते? क्या आप C1 के अलोंग अलग से निकालते, C2 के अलोंग लाइन इंटीग्रल अलग से, C3 का अलग, C4 का अलग? या उसने कह दिया स्टोक्स, तो अब तो मजबूरी है, क्योंकि अगर आपने सीधा कर दिया, स्टोक्स यूज नहीं किया, तो फिर आपको नंबर मिलेंगे 0। दैट इज द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ यूपीएससी। वहां स्टेप्स करके भी कुछ बवाल मत बोलिए, क्योंकि आपने जो उसने पूछा उसका आंसर ही नहीं दिया। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ आई स्टार्ट डिकोडिंग द थिंग्स हियर एज वेल, ठीक है? कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स में कहां कहां आप फंस सकते हैं। आराम से देखते रहिए। So let's say if I say this is the point A, B, C, D. So अगर आप AB की बात करें, ठीक है? AB is the curve C4 और वो है क्या? Line passing through 2 points, right? Line passing through 2 points। अच्छा, आंसर में भी एक आंसर हो सकता है सीधा इवेल्युएट करना लाइन इंटीग्रल, बट हियर आस्क्ड स्टोक्स, सो यू हैव टू गो फॉर द वेव 2। वेव 1 के बारे में आपको, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज जब तक फील नहीं होंगी तब तक आप कैसे समझेंगे कि इस प्रॉब्लम में कहां हर्डल्स आने वाले हैं। वेयर वी आर गोना स्ट्रगल हियर, राइट? हवा में तैरते रहेंगे नहीं तो। अब देखिए, जब आपको इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, 2 पॉइंट्स माइनस a, 0, 0, माइनस a, सो बाई माइनस बाई 1 इक्वल्स बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सो दिस विल बी माइनस का a अपॉन का प्लस का a, सो माइनस दिस इज, सो y equals minus x minus a, right? Now similarly you can go for this line, so this is with the positive slope। अभी आप करके BC लाइन लिखेंगे, CD लिखेंगे, DA लिखेंगे, और हर लाइन के अलोंग C1 PDX प्लस QDY टाइप का, प्लस C2 के अलोंग
प्लस C3 के अलोंग प्लस C4 के अलोंग आप कैलकुलेट करेंगे। दैट कैन बी, अगर उसने ये ना कहा होता कि स्टोक्स से करना है, बट ही हैज स्पेसिफिकली मेंशन्ड कि वी हैव टू गो बाय द स्टोक्स। तो अब अपने को क्या करना है कि डबल इंटीग्रल में जाना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन, अब आप देख लीजिए, नाउ इट्स योर आंसर x by dx, x by square dx, x by x by dx, एक बार देख लेना था मुझे, x by square dy, x बाई स्क्वायर। अभी भी एक ऐसा पिन पॉइंट बचा है जहां मुझे लेक्चर ब्रेक करने का मन नहीं कर रहा है कि नहीं यार एक पॉइंट और बचा है, वो और बोलेंगे इसको, ठीक है। सो इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, देखिए जरा पीछे कैसे लिखा जा सकता है, यही तो स्टोक्स है, यही तो स्टोक्स है इन एक्स बाई प्लेन। So here P is x by Q is x by square. So by Stokes, ठीक है, क्या हो जाएगा, डेवर Q ओवर x y के ऊपर लिमिट्स, डेवर Q ओवर डेवर x माइनस डेवर P ओवर डेवर y dx dy. So लिमिट्स ओवर x, डेवर Q ओवर डेवर x बाई स्क्वायर माइनस x इंटू dx dy. अब आप कहेंगे सर आप क्या कह रहे थे, कहाँ फंसेंगे जाके, क्या होगा। अब आप मुझे बस x y की लिमिट्स बता दो तो मैं आपको धन्यवाद कर दूंगा, मैं आपको धन्यवाद कर दूंगा, ठीक है। अगर आप देखें केवल इस ब्लॉक की बात करें, मान लो, ठीक है, यहां पे आपको स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, इस स्ट्रिप को इस एंड पर लाइए। सो x इज गोइंग फ्रॉम, लेट से इसमें जितना होगा उसका 2 टाइम्स कर देते हैं, नहीं तो माइनस a टू a जाना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर 2 स्ट्रिप लेनी पड़ेंगी, एक इस पे एक इस पे, एरिया है इसलिए मैग्नीट्यूड ही तो आएगा। y विल गो फ्रॉम दिस पॉइंट, क्योंकि y इज डिपेंडिंग ऑन x नाउ फॉर द डबल इंटीग्रल। सो इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन, तो यू कैन अटेंड द कॉन्सेप्ट टॉक्स फॉर मल्टीपल इंटीग्रल्स वाले, देयर आई हैव लाइक told these, I have explained these from the very basics, okay. So by will go from let's say C4 का तो हमने निकाल ही लिया था, that is माइनस x माइनस a से ऊपर वाले लाइन की ओर चला जाएगा, तो x फिर प्लस का a हो जाएगा। एक बार इसको क्रॉस कर लेना है, AD लाइन चेक कर लेना, ठीक है। सो दिस इज बाई स्क्वायर माइनस x dx dy। अब क्या बचा, just simple double integration and you can proceed. कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी, anyone, any issue till here, please say yes or no. तो हालांकि हमने इसको कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम्स को 2 कॉन्सेप्ट टॉक्स में डिवाइड किया है, अगले वाले में एक में और रखेंगे जहां पर हम और सिलेंड्रिकल कोन वाला सरफेस कई बार मल्टीपल टाइम्स पूछता है, क्यूब वाला हमने पहले कर दिया था, इसलिए सिलेंडर, कोन, ये जो बचे हुए हैं सरफेसेस, और पैराबोला के साथ में या प्लेन कट करता है सिलेंडर को, दोज टाइप ऑफ कैटेगरीज आई विल बी कमिंग अप इन द फर्दर कॉन्सेप्ट टॉक, ओके। सो आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज डिस्कशन, डोंट फॉरगेट टू अप्रिशिएट ईच अदर, आई ऑलवेज विश यू गाइज like to have the great learning with me. This wala part I'll be continuing from the next as well, so I hope it's enough for you. Here I have done categories for vector integrations, right? So it's enough from my side for this particular. I hope you people are learning and enjoying well as well. One more thing I would like to say here is, don't hesitate. अगर आपको लगता है if you have basics not clear, if you have something lagging behind, do let us know. How to cope up your preparation with the UPSC itself. Don't hesitate, because preparing with the science optionals like mathematics and all, it is altogether a different story. I always say this thing.
So dear fellows, never hesitate in talking. I am always open for you guys. You can suggest what next you wish from my side. Otherwise, we'll come up with the next concept talk. So I hope you people will be keep learning, keep smiling. Good luck from my side.